Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Thank you. Okay. एक्चुअली लेक्चर का लिंक 3:15 को ही मैंने सेंड किया था, लेकिन वो गलती से बी ग्रुप पे चला गया था। अभी इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। जस्ट अ मिनट। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक क्वेरी मैंने आपको दिया था, स्टेटमेंट, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने ग्रुप पे सेंड किया था। सबने एग्जीक्यूट करके देखा है? ओके। बीच सब्जेक्ट ओके। Problem statement is: imagine a publishing company which does marketing for book and audio cassette version. Create a class publication that stores the title, that is data type is string, and price, for price data type is float, okay, of a publication. From this class, derive two classes: book, which adds page count, and tape, which adds playing time in minutes. Okay. So in this problem statement, we have to use inheritance concept. There is a one base class, and from that base class, we are deriving two new classes. That is, what is the class name? From this class, derive two classes. First class is book and other class is tape. Just a minute. I want to open our SC computer syllabus. So this is our first group A, implementation, implement a class complex. तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हमने यूज करके ये फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट की है. ओके. सेकेंड असाइनमेंट रिगार्डिंग द स्टूडेंट डेटाबेस.
Also, we completed this assignment, that student name, roll number, class, division. In this assignment, we used constructor, destructor, then copy constructor, static member function, friend class. फैकल्टी नाम का एक क्लास लिया था, उसको हमने एज अ फ्रेंड क्लास बनाया था. So this is our third assignment of group A. Group A, third assignment. What is third assignment? That is given. अभी मैंने जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करके बताया, that is our third assignment, third statement of group A. So what is in this assignment? In this assignment, we need to know what is inheritance, what is base class and derived class. Then what is public inheritance, protected inheritance, private inheritance? What are the different types of inheritance? Single level, multi-level, multiple, hierarchical, then multi-level and hybrid inheritance. So we will see one by one. ये प्रोग्राम भी मैं एग्जीक्यूट करके आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. C++ supports the concept of reusability. Once a class has been written and tested, it can be adopted by other programmers to suit their requirements. This is basically done by creating new class, reusing the properties of the existing one. तो जनरली हम इनहेरिटेंस क्यों यूज करते हैं? पर्पज इज रीयूजेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, मतलब बेस क्लास के जो कुछ मेंबर्स हैं वो हम डिराइव्ड क्लास में भी यूज कर सकते हैं. मतलब बेस क्लास के प्रॉपर्टीज डिराइव्ड क्लास में यूज करने के लिए. So what is base class and derived class? When creating a class, instead of writing completely new data, members and member function, नया क्लास टाइप राइट करने से अच्छा है कि हम क्या करें? Writing completely new data, members and member function, the programmer can designate that the new class should inherit the members of an existing class. Okay, that's why this existing class is called base class or super class or parent class, and the new class referred to as is called as derived class. तो ये हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है थियोरी में. Again, if that there is a public section, we can summarize the different access types according to who can access them. अगर पब्लिक है तो सेम क्लास में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. प्रोटेक्टेड है then also we can access, but private है we cannot access within same class. We can access within the same class. It is private also, but in derived class we cannot access the private members. Also for outside class we cannot access private members. Within the same class we can access. Then we need exception handling concept for this program. What is exception handling? Exception occurs when an unexpected error or unpredictable behavior happened. तो ये भी स्टडी हो चुका है. So how to write the exception handling? There is a try block. We have to throw some expression, then catch block. Okay. So here there is a try block explanation is given.
already we know what is the try block, what is throw block, what is in catch block. Okay. तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें जनरेट करना है, मतलब एग्जीक्यूट करना है using our logic. So there is a algorithm to do this program. First we have to create the class marketing. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला है पब्लिकेशन नाम का एक क्लास क्रिएट करो, तो पब्लिकेशन भी दे सकते हैं, मार्केटिंग भी दे सकते हैं, विथ वेरिएबल टाइटल एंड प्राइस. ओके, सो इन publication class or in marketing class there are two variables, title and price. Then we have to define default parameterized constructor, define function get data, define function put data, then input data, check if length of title is more than 3. एक मिनट, अभी मैं प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करूंगी तब ये थियरी आपको ज्यादा समझ में आएगी. हमें एक्सेप्शन क्या देना है, फॉर व्हाट पर्पज वी आर यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन दिस प्रोग्राम. तो कंडीशन क्या होगी, इफ लेंथ ऑफ टाइटल इज मोर देन 3 characters, else जनरेट एक्सेप्शन एंड हैंडल एक्सेप्शन. अगर लेस देन 3 है तो एक्सेप्शन जनरेट होगा. ठीक है. इनपुट डेटा, चेक इफ प्राइस इज नॉन गिवन, नॉन निगेटिव, देन जनरेट एक्सेप्शन. अगर प्राइस आपने पुट नहीं किया है देन यू हैव टू जनरेट एक्सेप्शन. क्रिएट अ डिराइव्ड क्लास. नेम ऑफ डिराइव्ड क्लास इज बुक फ्रॉम बेस क्लास मार्केटिंग with variable number of pages. Define default and parameterized constructor to initialize the variables. Define function. Okay, there are total 17 steps to perform this program. Open assignment 3, OP Group A, assignment 3. So this is the problem statement, whatever we just read here. First, I want to execute it, compile, no errors, no warnings, then run this program. करना क्या है, मतलब आउटपुट देख के कभी कभी समझ में आता है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ. एंटर टाइटल एंड प्राइस. तो बुक का टाइटल मुझे डालना है C++. This is my book title. Price of the book 800 suppose. Enter number of pages in book 900 suppose. Now there is a cassette information. Enter title and price of the cassette. Okay. तो हम क्या कर रहे हैं कि बेस क्लास में हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, टाइटल एंड प्राइस, जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है. ओके. तो बुक के लिए भी मैं टाइटल और प्राइस ये वेरिएबल यूज कर सकती हूँ, और कैसेट के लिए भी टाइटल एंड प्राइस ये वेरिएबल मैं यूज कर सकती हूँ. मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि रीयूज कर रही हूँ, रीयूजिंग द properties of base class in derived class. What is the name of derived class? Book and tape. ठीक है. Enter title and price. Suppose DDLJ is the cassette name and price 600. Okay. Enter play time of cassette. Suppose 30 minutes something. तो वो क्या डिस्प्ले कर रहा है हमें, ये तो हमने इनपुट दिया है, एंटर टाइटल प्राइस, एंटर टाइटल एंड प्राइस. देन बुक टाइटल इज C++, प्राइस इज 800, पेजेस आर 900. व्हाट आर द
information I entered before, that is going to display here. Okay, and for cassette also same information, whatever I entered, that is title is DDLJ, price is 600, play time is 30, that is displayed. तो आपको क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम जनरेट करना है. ओके, यू हैव टू परफॉर्म प्रोग्राम लाइक दिस. अभी इसमें एक्सेप्शन कहाँ है? सो आई want to run this program again. Execute, run. एक्सेप्शन क्या है कि अगर मेरा टाइटल लेस देन 3 डिजिट, सॉरी टाइटल लेस देन 3 कैरेक्टर है, तो मैं C++ के बदले सिर्फ C लिखती हूँ. ओके, C A B कौन सा भी मीन्स लेस देन 3 कैरेक्टर्स. माय टाइटल इज लेस देन 3 कैरेक्टर्स. टाइटल एंटर किया, एंटर प्राइस, मैं प्राइस एंटर कर रही हूँ 600, देन एंटर नंबर ऑफ पेजेस 700, कैसेट एंटर टाइटल एंड प्राइस. ओके, दिस इज द टाइटल एंड प्राइस. प्राइस अगर निगेटिव है, सपोज मैं यहाँ पे 0 दे रही हूँ, 0. एंटर प्ले टाइम 80 minutes suppose. Now see here the difference between previous input and this input. What is the difference? Here is the book and okay, this is our entered data, that is book, and this is cassette. तो book में यहाँ पे error क्या आई है? What is the error here? Error is what? Title below 3 char is not allowed. This is the error. Again, see here, मैंने प्राइस कैसेट का प्राइस 0 लिखा था. दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन. सो एरर क्या आना चाहिए? प्राइस नॉट वैलिड, ये एरर आना चाहिए. ओके, तो आपको प्रोग्राम में क्या इंप्लीमेंट करना है वो समझ में आया? व्हाट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर प्रोग्राम? You have to implement such type of output. Okay, only 18 to 19 students are there. तो मैं ये एक्सप्लेन करूं या नहीं प्रोग्राम? नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ऑफ दूंगी जिन लोगों ने ये लेक्चर अटेंड किया है, और बाकी जो अब्सेंट है उनको मैं ले सकती हूँ ये प्रोग्राम. ठीक है? यस, एनीवन? आउटपुट क्या इंप्लीमेंट करना है ये समझ में आया? पार्टिसिपेंट्स? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू. नाउ प्रॉब्लम, एक एक लाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आपको अच्छी तरह से रीड करना है. इमेजिन अ पब्लिशिंग कंपनी which does marketing for book and audio cassettes version. Create a class publication that store the title and price. टाइटल किस में होगा? स्ट्रिंग में होगा, क्योंकि टाइटल जो है स्ट्रिंग में है, मतलब टेक्स्ट विथ डिजिट भी वो एंटर कर सकता है. देन टाइप फ्लोट फॉर प्राइस. तो वैसे ही किया है, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम में दिए हैं वही यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है. क्लास मार्केटिंग पब्लिकेशन क्लास भी ले सकते हैं, नो इशू. सो क्लास मार्केटिंग इज देयर. इसमें हमने क्या लिया है? प्राइवेट मेंबर्स. इन क्लास प्राइवेट मेंबर्स आर स्ट्रिंग एज अ टाइटल एंड फ्लोट एज प्राइस. ओके, नो इशू. आप ऊपर भी और यहाँ पे एट द एंड ऑफ क्लास भी डिफाइन कर सकते हो. तो एज इट इज कर दिया है. मार्केटिंग नाम का एक कंस्ट्रक्टर लिया है जिसमें इनिशियली टाइटल एम्प्टी रहेगा, प्राइस एम्प्टी रहती है, मतलब कुछ वैल्यू हमें इनिशियलाइज करना होता है, दैट इज
0. Then marketing is next constructor. It is a parameterized constructor. In that title is one variable and float is other variable. Using this pointer, we are assigning the title which is we declared here in private section, that is this title. Okay, that title is equal to this title and that price is equal to this price. So this pointer we are using here. Okay, now get data is the function, simple function. Enter title and price हमें चाहिए, वैसे एंटर करना है. एंटर टाइटल एंड प्राइस, तो उसको रीड करो, टाइटल और प्राइस रीड किया. देन पुट डेटा. So in putting data function, input data function, we are using the exception handling. So try block we need. What is the condition for try exception? If title dot length, अगर title का length less than 3 character है, then throw the title. Throw the title. This title is means exception. यहाँ पे कुछ वैल्यू थ्रो करना है तो टाइटल थ्रो करेंगे. So what is title? That is a string data type. If price is less than or equal to 0, तो भी हमें exception throw करना है. So throw the price for price error. Throw the title for title error. Okay. Now catch block रहता है हमारा, तो try block में ही हम throw लिखते हैं जो जो एक्सेप्शन करना है उसके लिए. नाउ कैच ब्लॉक. सो कैच स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग मतलब टाइटल का जो एक्सेप्शन है वो हैंडल करेगा, और कैच फ्लोट एफ मींस वो प्राइस का एक्सेप्शन हैंडल करेगा. ओके, सो कंपाइलर को समझ में आएगा कि यहाँ पे टाइटल में कुछ प्रॉब्लम है, तो कैच कौन सा स्टेटमेंट करना है, ये दिस स्टेटमेंट कैच का फॉलो करना है या ये कैच का स्टेटमेंट फॉलो करना है. ओके, नाउ जब टाइटल लेस देन 3 कैरेक्टर होगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, टाइटल बिलो 3 कैरेक्टर इज नॉट अलाउड. ओके, सो वी हैव टू राइट देयर टाइटल इज एम्प्टी. अगर प्राइस लेस देन प्राइस की वैल्यूज अगर वैलिड नहीं है तो हम टाइटल सॉरी प्राइस इज नॉट वैलिड डिस्प्ले करेंगे. और अगर वैलिड है बोथ टाइटल एंड प्राइस, देन वी हैव टू जस्ट डिस्प्ले इट. तो सिंपल डिस्प्ले फंक्शन क्या होता है हमारा, टाइटल इज दिस वन एंड प्राइस इज दिस वन. ओके, ये हमने पहले ही बता दिया है. ओके, बुक इज आवर क्लास, that is derived class in public mode for marketing, and in public mode in public section there is a book constructor. We have to initialize page is equal to 0. Then we have to initialize the parameter constructor having title, price and pages. Then what are these pages? Why we are using this pointer here? Whatever the integer pages declared here, that is the pages we are including in this class. तो प्राइवेट सेक्शन में जो पेज वेरिएबल दिया गया है, that variable is equal to this variable, that is page. This pointer current object को पॉइंट करता है. देन गेट डेटा फंक्शन, एंटर नंबर ऑफ पेजेस इन बुक, तो हमने पेजेस एंटर कर दिए. देन पुट डेटा, दिस इज अ सिंपल फंक्शन. इन दिस वन देयर इज अ ट्राई एंड कैच ब्लॉक ऑल्सो. तो क्या एरर आनी चाहिए, इफ पेजेस लेस देन 0, एरर डिस्प्ले होना चाहिए पेजेस नॉट वैलिड.
अगर एक्सेप्शन नहीं है, वैलिड है, तो पेजेस आर, तो उसके आगे पेजेस वो जो हम यूज कर रहे हैं, जो एंटर किए हुए हैं वो डिस्प्ले करेगा. पेजेस इज द वेरिएबल टू डिस्प्ले द पेजेस. देन कैसेट नाम का एक दूसरा क्लास लिया है. इन दिस ऑल्सो प्ले टाइम 00 इनिशियलाइज किया है कैसेट नाम के कंस्ट्रक्टर में. दिस इज कैसेट कंस्ट्रक्टर having parameterized constructor type. Same again. Then get data is what we have to enter play time of cassette. So enter this play time and read that play time. Then put data function. So if play time is less than 0, then there is an exception or error, play time not valid. Now main function is here. In this main function, just we are calling that functions in main function. First book is our derived class, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फंक्शन कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं. तो मुझे बुक जो है उसका इंफॉर्मेशन एंटर करना है, तो गेट डेटा फंक्शन पे जाना चाहिए. सो बुक डॉट गेट डेटा, ठीक है. और कैसेट के लिए कैसेट डॉट गेट डेटा. ये कैसेट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है कैसेट, स्मॉल कैसेट, एंड दिस इज कैपिटल कैसेट. मतलब थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए. सी भी ले सकते हैं बुक के लिए, बी भी ले सकते हो. सो कैसेट डॉट गेट डेटा मतलब कैसेट का डेटा एंटर करने के लिए इंफॉर्मेशन पूछेगा. देन बुक डॉट पुट डेटा, कैसेट डॉट पुट डेटा टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन वॉट एवर वी एंटर्ड, दैट इज यूजिंग दिस वन, एंड देन रिटर्न 0. बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, समझ में आया? और हमने एग्जीक्यूट भी करके देखा है अभी. I think there is no need to execute this program again. So today we finished our third assignment from group A. तो जब हम लोग ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर रहे थे तब लग रहा था कि क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बट आफ्टर displaying the output and after explaining this coding, after explanation of this coding, I think it is easier to you to understand what is the problem statement. Okay. और मैं और एक प्रोग्राम एक्सप्लेन करने वाली थी, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जो कोड मैंने आपको ग्रुप पे सेंड किया था, कॉपी पेस्ट किया था. ओके गाइस, वो प्रोग्राम एक्सप्लेन करना है या फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेना है? लेकिन कैसे कि अभी 3:30 को लेक्चर स्टार्ट हुआ है, तो 4:30 तक कंटिन्यू करना पड़ेगा. नहीं तो फिर आप 4:20 को अटेंडेंस दे दो, अगर अभी कंटिन्यू नहीं करना है तो. यस गाइस, क्या करूं अभी? यस, पार्टिसिपेंट कितने हैं इसमें? यस, आदित्य जादव. आदित्य, आर यू देयर? यस मैम. तो अभी मैंने जो प्रोग्राम एक्सप्लेन किया वो समझ में आया? यस मैम. कंटिन्यू करूं या फिर आप 4:20 को अटेंडेंस देंगे? मैम कोई भी चलेगा मैम. तो स्टूडेंट कम है, इसलिए मुझे फिर से रिपीट तो करना ही पड़ेगा. तो मैं 420
मैं अटेंडेंस कोड आपको अभी बताऊंगी, लेकिन आपको आफ्टर 4:20 यू हैव टू फिल द फॉर्म, अटेंडेंस फॉर्म. प्रॉमिस? Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay, today's attendance code is 7. Okay, thank you guys. थोड़ा सा काम भी मेरा बहुत पेंडिंग है 3 दिन के मेडिकल लीव का. Okay, thank you. You can leave now. 7 is the attendance code and fill the attendance form after 4:20.